recording. So लास्ट हमने स्टार्ट किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन में हमने कवर किया था रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड देन मीन डेविएशन का कुछ पोर्शन हमने स्टार्ट किया था. नाउ मीन डेविएशन के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 12. इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम एक बार ट्राई कर लेते हैं. दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मोड. तो आपको मीन डेविएशन तो कैलकुलेट करना है, बट वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम मोड. सो लेट अस बिगिन दिस. सो क्वेश्चन है हमारा x सीरीज. x गिवन है 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11 and 8/11. Now, mean deviation about mode calculate करना है. So, what is the value of mode here? यहाँ पर mode की value कौन सी है? किसको हम बोलेंगे mode? Anyone? What is mode? जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है, that is mode. तो yes, it is 8/11. Arohi has given the answer. So 8/11 is the mode. Now, what is the next step? अब आपको mode से deviation लेना है. So modulus x minus z. And z is equal to 8/11. तो क्या करना है आपको? 4/11 minus 8/11 in modulus. तो कितना आ जाएगा? 4/11. Similarly, 6/11 minus 8/11. So you will get 2/11. Then 0, 1/11, 4/11 and then again 0. Now what is the total? Total कितना आ जाएगा? Let's calculate. That is 11/11. That is 1. So total 1 आ चुका है. Now what is the formula for mean deviation? So mean deviation equal to sigma mod of x minus z divided by n. This is the formula. And just substitute the value 1 divided by number of observations. तो कितने observations है? We are having 6 observations. So correct answer is 1/6. So 1/6 is option number B. So in this way, we can simply answer. तो अभी तक जो हमने पोर्शन कवर किया है, that is mean deviation in individual series. Now, in case हमें discrete या continuous के लिए calculate करना है, तो कैसे करेंगे? So let's do that with the help of question number 14. Yes, question 14 में हम try करते हैं. Class interval is given, frequency is given, and you are supposed to find out mean deviation from mean. Mean से आपको deviation calculate करना है. So how do we calculate? Okay, so let's start. Class interval is given 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and then 50 to 60. One more is there, 60 to 70. Now, क्योंकि हमें मीन से डेविएशन लेना है, so you are supposed to calculate the mid value, that is x. तो x कैसे आता है? 0 plus 10 divided by 2, that is 5. Then 10 plus 20 upon 2, 15. Then 25, 35, 45, 55, and then 65. This is the value of x. Now, frequency, what is f? 8, 12, 10, 8, 3, 2, and 7. This is the frequency. Now, what is the formula for continuous series? So, mean deviation is equal to sigma f, then mod of x minus x bar divided by sigma f. Okay, so sigma f we can calculate from here. इसको फटाफट से ऐड कर लें, बता दें what is the total.
So I think the total is 50. Yes, 50 is the total of frequency. Now x bar से अगर आपको deviation लेना है, then you have to calculate x bar first. तो साइड में x bar भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो x bar कैसे आता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. सो आपको पहले fx भी कैलकुलेट करना है. 40, 15 into 12 is 180, then 250, 35 into 8 is 280, 45 into 3 is 135, then 110, and then 65 into 7 is 455. अब फटाफट से ऐड करके बता दो व्हाट इज द टोटल. इन सब का टोटल आपको कैलकुलेट करना है. एंड द टोटल इज how much? 1450. Yes, 1450 is the total. Now x bar calculate करते हैं. 1450 divided by 50. So how much you are getting? 29. तो x bar is 29. तो अब आपको क्या करना है? x bar से deviation calculate करना है. So let's calculate the deviation from x bar. So mod of x minus x bar. X is 5 minus 29 modulus is there. तो कितना लिखेंगे? 24. Then 15 minus 29, you are getting 14. Next is 4, then 6, 16, 26, and then 36. Okay, these are the values. But हमें इसका टोटल नहीं चाहिए. हमें किसका टोटल चाहिए? हमें इसको फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो लेट अस मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ इसका टोटल आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके मुझे बता देना है कि व्हाट इज द फाइनल टोटल. तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें और फिर मुझे बता दें इसका टोटल. सो 8 into 24 ये आता है आपका 192. Then 12 into 14, then 10 into 4, 8 into 6, 3 into 16, 2 into 26, and 7 into 36. So what is the total? Yes, anybody? इसका टोटल आपको बताना है. f multiply by mod of x minus x bar. What is the final total? कितना आ रहा है इसका टोटल? Let me know. Anybody has done? No one? मैंने इसको कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है. दैट इज इट इज 800. नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. 800 divided by sigma f. What is sigma f? It is 50. Therefore, mean deviation is equal to 16. तो इस तरीके से आप सिंपली मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मीन डेविएशन का करेक्ट आंसर आ चुका है 16. एंड किसने आंसर दिया है? जानवी. जानवी हैज गिवन द आंसर 16. परफेक्ट. ओके, आई थिंक यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा. This is mean deviation in discrete and continuous series. So mean deviation can be taken from mean, median or mode. जैसी requirement है, as per the question you can calculate. Now, इस चैप्टर का जो सबसे important portion और सबसे important measure of dispersion वो कौन सा है? Standard deviation. So let us start with the theory of standard deviation first. तो पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय, इसका एक सिंबल सामने बना है. ये इसका सिंबल है और इसको हम क्या कहते हैं? इस सिंबल का नाम है सिग्मा. दिस सिंबल इज नोन एज सिग्मा. अब आप कहेंगे सिग्मा अगर ये है तो फिर ये कौन सा सिग्मा हुआ? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए होता है वैसे ही कैपिटल सिग्मा एंड स्मॉल सिग्मा भी होता है. कैपिटल सिग्मा इज यूज्ड फॉर समेशन, दैट इज
टोटल, जो आपको सम करना है तो आप कैपिटल सिग्मा यूज लेते हैं, बट स्मॉल सिग्मा इज यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल हो गया सिग्मा। इसका दूसरा एक और नाम है, तो प्यार से हम इसे कहते हैं नीटा, नॉट नीता अंबानी, इट इज नीटा, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन हो गया नीटा। नाउ इसका एक फॉर्मूला बनता है, उसके लिए फर्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। क्या लिखा है पहले? रूट ऑफ, तो हम बना देते हैं रूट, ओके। मीन ऑफ, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ अब न्यूमरेटर में x की जगह पे क्या लिखना है? स्क्वायर ऑफ डेविएशन। तो पहले आपको स्क्वायर लगा देना है, हमने ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या करना है? डेविएशन लेना है, तो x का हमने डेविएशन लिया। किससे लेना है डेविएशन? फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो x बार आपने लिख दिया। तो इस लाइन से क्या बन जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? तो रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। देन इट इज मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा काम आने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एंड इट इज नोन एज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन का सबसे बेस्ट मेजर होता है। देन अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? जीरो। व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो। अगर सारे ऑब्जर्वेशन 10 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो। अगर सारे ऑब्जर्वेशन 50 है तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो। और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं, बाकी सारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी क्या होंगे? जीरो। बिकॉज अगर सारे ऑब्जर्वेशन 10 है तो हाईएस्ट वैल्यू भी 10 है, लोएस्ट वैल्यू भी 10 है, तो रेंज कितना आ जाएगा? 10 माइनस 10, जीरो। सिमिलरली अगर सारे ऑब्जर्वेशन 10 है तो Q1 भी 10 होगा, Q3 भी 10 होगा, तो क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू अगेन कितना बन जाएगा? जीरो। एंड अगर मीन डेविएशन में आप डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन और मीडियन और मोड, देन उनका डेविएशन भी कितना आ जाएगा? जीरो। इन शॉर्ट, जब सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल है, देन मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज ऑलवेज जीरो। देन स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। अगर हम नीटा का स्क्वायर कर देते हैं, देन इट इज नोन एज वेरिएंस। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव नहीं होता है तो क्या रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, क्या इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं? ये आपको आंसर करना है, यस और नो। क्या लगता है? कैन these be negative or not? Navya says no, it cannot be negative. Arohi also no. Suchiang no. Janvi is left. Kavya is left. Kavya says also no. And Janvi also no. Yes, perfect. So, कोई भी measure of dispersion negative नहीं हो सकता. It is always positive or it can be zero, but can never be negative. Then, standard deviation is based on all observation. तो स्टैंडर्ड डेविएशन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। रेंज में हमने पढ़ा था, रेंज इज बेस्ड ऑन टू वैल्यूज कौन सी? दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज पे। देन क्वार्टाइल डेविएशन में हमने डिस्कस किया था, इट इज बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन डेविएशन में हमने डिस्कस किया, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, एंड अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर्स, अगर सिर्फ दो नंबर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज सिंपली हाफ ऑफ रेंज। रेंज का आधा, रेंज का आधा करना है, हाफ करना है। दैट मींस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। लेट्स से इफ 10 and 20, these are the two observation। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ टू ऑब्जर्वेशंस के लिए ही एप्लीकेबल है।
तो जहां दो ऑब्जर्वेशन है तो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ रेंज। तो हाईएस्ट वैल्यू 20, लोवेस्ट वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2, you are getting 5. So this 5 is the standard deviation. Okay. Then स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर हमें सीरीज दे रखी है नेचुरल नंबर की, तो फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप उसको नॉर्मल मेथड से तो कर ही सकते हैं, बट एक अलग शॉर्टकट फॉर्मूला भी इसका अवेलेबल होता है, दैट इज रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। लेट्स से अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन of first 7 natural numbers, फर्स्ट 7 नंबर्स का आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 1/12। तो 48/12 gives 4 and root of 4 is 2. तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नव्या हैज गिवन द आंसर 2। परफेक्ट। ओके, नाउ अब इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं, और सबसे खास बात क्या है, फॉर्मूला आप कोई भी यूज करें, रिजल्ट विल रिमेन सेम, सबका आंसर सेम आ जाएगा। सो कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल है फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, एंड इसकी प्लेस पर आप एक्स बार भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स बार। सेकेंड फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। थर्ड मेथड आता है शॉर्टकट मेथड, जहां पर हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अज्यूम मीन। हियर डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। तो dx कैसे आता है, x माइनस a, बिकॉज डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन से आप डेविएशन लेते हैं। ओके, so these are the three formulas in individual series. Now पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। So question number 16, standard deviation of first n natural numbers is 2. First n natural number का standard deviation 2 है, find the value of n. Now ये आपको अभी सॉल्व करना है and give me the answer, और फिर immediately आंसर देना है। तो क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर नेचुरल नंबर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है, तो n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो सीधा क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यस, किसने आंसर दे दिया है, यस, नव्या हैज गिवन द आंसर, दैट इज करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। n स्क्वायर माइनस 1/12 इज इक्वल टू 4। Therefore, n square equal to 48 plus 1. Now, n is equal to plus minus 7, because रूट को आप सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, प्लस माइनस 7। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नो। तो इन दो वैल्यूज में से ओनली पॉजिटिव 7 को ही आपको कंसिडर करना है। सो देयरफॉर आंसर इज 7। Answer is 7. Negative value is not possible. Number of observations कभी negative नहीं हो सकते हैं। All right. Yes. Suchang Arohi has also given the answer. Perfect. So this is the first question of standard deviation. Now 17th में आपको जज करना पड़ेगा which formula can be used. स्टैंडर्ड डिविएशन आपको कैलकुलेट करना है, तो हमने एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं।
So it is root of sigma x square upon n minus सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 60/10 होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 माइनस 64 √36। राइट। तो फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर बता दें, व्हाट इज द फाइनल आंसर। Yes, come on everybody. Navya has given 8. Navya has given answer 8. So √64 is equal to 8. Perfect. Option number C is correct. Option number C is the correct answer. Then 18th. 18th में सीरीज इंडिविजुअल गिवन है, कोई भी मेथड कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें, आंसर विल रिमेन सेम। 19th में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। 19th आपको अभी सॉल्व करना है। सीरीज गिवन है 40, 50 एंड 60। Okay, and find the standard deviation. So x is 40, 50 and 60. So let's try with the shortcut method. Formula root sigma x minus. Okay, let's try with summation method, mean method. ये आपको थोड़ा और शॉर्ट पड़ेगा, शॉर्टकट में एक स्टेप ज्यादा होगा, आंसर विल रिमेन सेम, नो वरीज। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। तो अभी आपको पहले क्या निकालना है, x बार। तो x बार कितना आ जाएगा, सिग्मा x अपॉन n। तो 150/3 गिव्स 50। सो 50 आ चुका है आपका x बार। नाउ कैलकुलेट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सो 40 माइनस 50 गिव्स -10, और -10 का क्या करना है, स्क्वायर। 50 minus 50 is 0, 0 square is 0. 60 minus 50 is 10, 10 square is 100. So 100, 0 and then 100. So what is the total? 200. Now 200 upon 3. What is the result? 8.16. So 8.16 is the final answer. All right. So option number A. Then the next formula is for discrete and continuous series. Now, जब भी series discrete या continuous होती है, you have to insert frequency in between. बाकी formula as it is है, सिर्फ आपको हर जगह पे f insert करना है। तो in direct method you can see that sigma f into x square upon sigma f minus sigma fx upon sigma f whole square. तो इन चारों प्लेसेस पे आपने क्या इंसर्ट कर दिया है, f को इंसर्ट कर दिया है। राइट, यूजिंग मीन, पहले वाले फॉर्मूले की प्लेस पे आपने सब जगह पे फ्रीक्वेंसी को इंसर्ट किया है, रेस्ट पैटर्न इज सेम। इन शॉर्टकट मेथड ऑल्सो यहां पर भी आपने फ्रीक्वेंसी को इंसर्ट किया है, एंड देयर इज वन मोर मेथड विच इज नोन एज स्टेप डिविएशन मेथड। नाउ स्टेप डिविएशन मेथड में क्या चेंज होता है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू शॉर्टकट मेथड, लेकिन एक चेंज होता है इसमें। शॉर्टकट मेथड में हम लिखते हैं dx,
इज इक्वल टू x माइनस ए। बट हम यहाँ क्या लिखते हैं, dx डैश, और dx डैश कैसे आता है, x माइनस ए अपॉन आई। आई का मतलब होता है क्लास इंटू वेल, आई इज नोन एज क्लास इंटू वेल। तो डी डैश आपको यूज करना है सब जगह पे, एंड लास्ट में आई से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। आई से मल्टीप्लाई करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आपके 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो फॉर्मूलेज आपको ऑलवेज याद रहने ही चाहिए, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, इसी के साथ हम एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, लेट्स से देयर आर 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। दोनों ग्रुप में आपको गिवन होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज n1 एंड n2। दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा नीटा 1 नीटा 2। ऑल्सो दोनों ग्रुप का मीन भी गिवन होगा x बार 1 एंड x बार 2। ओके, नाउ इन सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके, सबको क्लब करके आपको क्या करना है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, जिसको हम कहते हैं नीटा 1 2। ये कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। नाउ फॉर्मूला दिखने में लेंथी दिख सकता है, बट इट इज वेरी वेरी इजी। क्या फॉर्मूला है, n1 नीटा 1 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 नीटा 2 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ नीटा तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d1 एंड d2? d1 और d2 क्या होता है, d1 d2 मींस डेविएशन। किसका डेविएशन है, x बार 1 2 का लेना है डेविएशन x बार 1 के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका d1। एंड x बार 1 2 का डेविएशन अगर आप 2 के साथ में लेते हो तो ये बन जाएगा d2। तो d1 एंड d2, these two are the deviations। एंड देन थर्ड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना होता है x बार 1 2, बिकॉज x बार 1 2 क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है नॉर्मली, तो यू हैव टू फाइंड आउट n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो जब भी आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज फाइंड x बार 1 2, second step is to find d1 d2, and then third step is to calculate neta 1 2। ये तीनों स्टेप जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा पूरा एक नंबर। यस, इट इज वेरी वेरी लेंदी, टाइम कम भी कंज्यूम होता है, बट यस हमें क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। n1 लेते हैं 10 and n2 is let's say 40। स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया हमने 5 and then 2। x बार 1 let's say 20 and x बार 2 is 30। ये सारी वैल्यूज हमने ले ली है। नाउ एज पर दीज स्टेप्स पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x बार 1 2, so 10 into 20 plus 40 into 30 upon 10 plus 40। So how much is x bar 1 2? कितना आ जाएगा, 200 plus 1200 is 1400 divided by 50, you are getting 28। Now find d1 and d2। So 28 minus 20 gives 8 and 28 minus 30 gives 2। Now यहाँ पर आप साइन कुछ भी लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, it makes no difference। Why so?
बिकॉज जब आप ऊपर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे D1 एंड D2 की, यहाँ पे आपको स्क्वायर ही करना है, तो आप साइन कुछ भी लगाए, अल्टीमेटली स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव बन जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड आपको सॉल्व करके बताना है कि व्हाट इज आवर फाइनल आंसर. ओके, so 10 into neta 1 square is 25 plus 10 into d1 square is 64 plus into 40 into neta 1 square, neta 2 square is 4, and then 40 into d2 square is also 4, whole divided by n1 plus n2, which is 50. अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं एंड कैलकुलेट द आंसर. किसने सॉल्व कर लिया है? लेट्स सी. यस, जानवी हैज गिवन द आंसर 4.91. परफेक्ट. सो जानवी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 4.919 is the correct answer. Then Arohi is also correct. Perfect. So in this way, you can calculate combined standard deviation. All right. Then the next point here is coefficient of variation. नाउ जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा है, देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फिर पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एंड अभी हम कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहें या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इन शॉर्ट उसको प्यार से हम कहते हैं सीवी. तो सीवी कैसे कैलकुलेट करना है हमें? तो इट इज standard deviation upon mean multiply by 100. सिंबल में अगर लिखा जाए नीटा अपॉन एक्स बार इंटू 100. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ हमने ये भी पढ़ा था, देर आर टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव मेजर. दोनों में से कौन सा बेटर होता है ये भी डिस्कस किया था. रिलेटिव मेजर बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ये कंपैरिजन करने के काम में आता है. तो रिलेटिव हमने सेलेक्ट किया. अब रिलेटिव में भी चार ऑप्शन है: कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इन चारों में से कौन सा यूज करना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. तो देयरफॉर जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है बिटवीन टू सीरीज और मोर देन टू सीरीज ऑल्सो, तो हम काम में लेते हैं सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें क्या बताता है कि कितना फ्लक्चुएशन है उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर. तो अगर किसी सीरीज में सीवी ज्यादा आता है, दैट मींस फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वेरिएशन भी ज्यादा है. और यू कैन से कंसिस्टेंसी इज लेस. तो वहां कंसिस्टेंसी क्या होगी? कम होगी. जिसका सीवी ज्यादा है उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है और कंसिस्टेंसी कम है. सिमिलरली अगर आपको कहा जाए सीवी कम है, अगर सीवी कम है इसका मतलब फ्लक्चुएशन इज लेस, वेरिएशन इज आल्सो लेस, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी. तो कंसिस्टेंसी विल बी मोर. ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपको दो सीरीज गिवन है, विच सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, तो आपको क्या बताना है? जिसका सीवी कम है उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है. ओके, तो अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर.
चलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? लेट मी नो. सो लेट्स आस्क फ्रॉम जानवी. यस जानवी, कोई डाउट है आपको अभी तक? नहीं सर। नहीं. ओके. देन काव्या. नो सर। No. Okay. So I think everyone is clear. So it's very good. Perfect. तो अभी जो हमने कवर अप किया है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे. अच्छा, इसके नोट्स मैंने आपको एप्लीकेशन के ऊपर शेयर कर दिए हैं. तो अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप वहां से एक बार इसको देख लें. और आज आपको क्या करना है, इस शीट के सारे क्वेश्चंस एक बार ट्राई करने हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, ताकि इस पूरे की पूरे नोट्स में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके कोई भी अगर डाउट्स है तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे. ओके. एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके इसी चैप्टर के कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल्सो कुछ और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. तो कल इस चैप्टर के हम डाउट्स लेंगे, साथ में ही पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी काफी सारे वो कवर कर लेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोरिलेशन. Excuse me, sir. या So can you resend the question, PDF? या श्योर, आई विल रीसेंड. मैंने इसको असाइनमेंट के नाम से वहां पे आपको शेयर किया है. अगर उसमें आपको विजिबल नहीं है तो मैं एक बार वापस आपको शेयर कर दूंगा. राइट. ओके. देन अच्छा, एक और चीज है कि आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो अभी हमारा जो टेस्ट है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. एंड टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, आपका फर्स्ट टेस्ट कब कंडक्ट करें? एनी सजेशन? फ्राइडे को रख लें? टेस्ट फ्राइडे को रख लें, सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, सुजांग सेज यस. काव्या इज ऑल्सो ओके. परफेक्ट. सो फ्राइडे को हम फिक्स कर लेते हैं, फ्राइडे को रखा जाएगा आपका टेस्ट. तो टेस्ट का टाइमिंग भी हम यही रखेंगे, इस टाइमिंग में आपको उस वक्त टेस्ट देना है फ्राइडे को, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस वक्त देख लें. तो टेस्ट आपका सेंट्रल टेंडेंसी का रहेगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना है. एंड उसके अलावा एक और चीज जो है कि अगर आपके फ्रेंड्स या और भी कोई कलीग्स है जिसको रिवीजन क्लास को ज्वाइन करना है तो ऑफकोर्स आप उनको शेयर कर सकते हैं. और शेयर करने पे आपको उसके अंदर और भी बेनिफिट्स भी रहते हैं. तो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आपको पॉकेट मनी भी मिलता है फ्रॉम माय साइड. अगर आपने शेयर किया है तो आपको उसका 10% एज द पॉकेट मनी भी मिलेगा. सो डू नॉट वरी, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या और कोई पर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं